Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature. Lesson 2nd, Children at Work. Okay, this lesson has been written by Geeta Wolf, Anushka Ravishankar, Arijit Sen from Trash on Ragas Picker, Children and Recycling. Okay. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. Others who run away from unhappy homes needs to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. Okay. यानी यहाँ ये बताया गया है कि ऐसे अनेक कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। ऐसे अनेक कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। कुछ आजीविका कमाने के लिए अपने परिवार की सहायता करते हैं और कई दूसरे जो अशांत घरों से भाग आते हैं। ठीक है, उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है उनकी आयु के दूसरे बालकों की तरह खेल या पढ़ नहीं सकते। ठीक है। Part 1. Velu, an 11 years old boy, runs away from home. He wanders around for hours before getting on train to Chennai without a ticket. Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shout a word of welcome. ओके, यानी वेलू एक 11 वर्षीय लड़का जो कि घर से भाग आता है। ठीक है, वेलू एक 11 वर्षीय लड़का है जो कि घर से भाग आता है और वो जो है बिना टिकट लिए he wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket. वह बिना टिकट लिए चेन्नई को जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने से पहले कई घंटे इधर उधर घूमता है। ओके, भूखा प्यासा और बिना यह जाने कि उसे कहाँ जाना है वह चलता जाता है जब उसे स्टेशन पर एक अजनबी चिल्लाकर उसका स्वागत करता है। ओके, when the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. Okay. Oh, out of the way. A porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर रुकी तो वेलू को उसमें से उतरने में थोड़ा समय लगा। जब वह अंत में प्लेटफॉर्म पर उतरा तो उसके पैर थोड़े से अस्थिर महसूस कर रहे थे, मानो वह अभी भी चलती गाड़ी में ही था। ओए, थोड़ा रास्ता दो, एक कुली सामान से भरी ट्रॉली के साथ वहाँ से गुजरा। वेलू को एक तरफ उछलना पड़ा। ओके, ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. Okay, यानी in this stanza author says that वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर अपनी छोटी सी गठरी को नीचे रखकर बैठ गया। अपने 11 वर्षों में उसने साल में एक बार लगने वाले गांव के मेले को छोड़कर इतने व्यक्ति पहले कभी नहीं देखे थे। लोग उसे अपने सूटकेसों से धकियाते हुए आगे बढ़ गए। लाउडस्पीकर में
से किसी घोषणा की आवाज़ आ रही थी। उसके नज़दीक व्यक्तियों का एक समूह अपने सामान के साथ ऊपर बैठा हुआ छत से लटके हुए टेलीविज़न की ओर देख रहा था। शोर असहनीय यानी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था लाउड स्पीकर का। ओके, और वेलू जो है काफ़ी परेशान हो रहा था। ठीक है, वेलू पुट हिज head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. Okay. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the under-reserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. Okay. यानी वेलू ने दुखी और निराश होकर अपने घुटनों पर अपना सिर रख लिया। वह 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था। 2 दिनों से उसने कुछ गिरियाँ यानी मटर के दानों व गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। अपनी गठरी में वह एक कमीज, एक तौलिया व एक कंघा लिए हुए था। ठीक है, वह पहले दिन कन्नूर के लिए चलता रहा था। अब वह चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ गया। वेलू के पास टिकट लेने के पैसे न थे, किंतु सौभाग्य से उस अनारक्षित यानी वो डिब्बा आरक्षित नहीं था, अनारक्षित डिब्बे में टिकट निरीक्षक भी नहीं आया। उसने दरवाजे के निकट फर्श पर सोने की कोशिश की। उसके समीप लोगों का एक समूह ताश खेल रहा था और पूरी रात शोर मचाता रहा था। ओके, यानी जो ताश खेलने वाले लोग थे पूरी रात शोर मचाते रहे थे। अभी व्हाट न्यू टू टाउन हैज called out a rough voice. Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, okay. अरे क्या शहर में नए हो? एक रूखी आवाज ने पुकारा। वेलू ने आंखें खोली। उसके चारों तरफ कई लोग खड़े थे, किंतु कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। यहाँ, अरे यहाँ। He turned around. Behind him was a girl. He turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. Why is she calling me? Thought Velu. And why is a girl wearing a banyan? Okay. यानी उसने पीछे मुड़कर देखा। वह पीछे मुड़ा और उसने देखा। He turned around. वह पीछे मुड़ा और देखा उसने कि उसके पीछे उसी की आयु की एक लड़की खड़ी थी, जो एक लंबी बनियान पहने हुए थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसके बाल कड़े और भूरे थे। उसके कंधों पर एक बड़ा झोला बोरा था। यह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में डाल रही थी। उसने मुझे क्यों पुकारा? वेलू ने सोचा। और यह लड़की बनियान क्यों पहने है? नो नीड टू स्टेयर, यानी नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। व्हाट्स योर नेम? वेलू मटर्ड वेलू, लुकिंग अवे। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। यानी इस तरह बेवकूफ़ी से घूरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? वेलू दूसरी तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। तो श्रीमान वेलू, लड़की ने उसकी गठरी की ओर देखते हुए कहा, घर से भागे हो? Velu didn't answer. He didn't want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money
Velu and his sisters earned and spent it on drink. Okay. Don't think I don't know. Okay. Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich. Okay. अब देखिए क्या होता है. She sat down next to him. Velu shifted away slightly. वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया. वह किसी अजनबी लड़की को यह बताना नहीं चाहता था कि उसने क्या किया है. वह घर से इसलिए भागा था. वह अपने पिता के हाथों एक दिन भी और पिटना नहीं चाहता था. उसके पिता सारा धन छीन लेते थे और जो वेलू और उसकी बहन कमाते थे उसे अपनी शराब पर खर्च कर दिया करते थे. ये मत सोचो मैं नहीं जानती. यह जगह तुम जैसे बच्चों से ही भरी पड़ी है. तुम तो यहाँ क्या करने जा रहे हो? क्या धनी बनना चाहते हो? क्या अमीर आदमी बनना चाहते हो? He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here gloomily making face. I can find some if you want. Okay, she picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow this girl? Okay, where was she going to take him? She was disappearing into the crowd. So he had to make up his mind quickly. All right, he decided anyway. I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. Okay, यानी in this stanza author says that यानी उसने जब ये कहा कि don't think I don't know, this place is full of children like you, so what are you going to do here? Become rich. She sat down next to him. Velu shifted away slightly. यानी उसने जब बताया कि ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती, यह जगह तुम जैसे बच्चों से ही भरी पड़ी है. तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? क्या अमीर बनना चाहते हो? ऐसा कहकर वो उसके नज़दीक बैठ गई. वह धीरे से थोड़ा सा खिसक गया. He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. यानी उसने महसूस किया कि उसे भूख सता रही है और एक पीड़ा के साथ अपना पेट दबाया. ओके, भूखे हो? लड़की ने पूछा. तुम यहाँ पर इस तरह उदासी से बैठकर या मुंह बनाकर भोजन नहीं प्राप्त कर सकते. अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ढूंढ सकती हूँ. उसने अपना बोरा उठाया और चल पड़ी. वेलू बेंच पर बैठा रहा. उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे उस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वह उसे कहाँ ले जा रही थी? वह भीड़ में ओझल हो रही थी, अतः उसे शीघ्रता से निर्णय लेना था. ठीक है, उसने निर्णय लिया. वैसे भी उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है. वह उछलकर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा. उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा. वह कहाँ है? ओके, प्लीज टर्न ओवर second part of this lesson. Okay, Velu follows his friend through the crowded street to a big building. Okay, behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. Okay, अब देखिए क्या होता है. वेलू एक बड़ी इमारत तक भीड़ भरी गलियों में अपने मित्र का अनुसरण करता है. ठीक है, और इस इमारत के पीछे एक बड़ा कूड़ेदान भी है. वेलू को आश्चर्य है कि वे वहाँ क्यों हैं. ओके, he caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin.
They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating, and the girl finally dragged him to the other side. Okay, what do you think you are doing? Grazing cows. If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट उसे उस लड़की की झलक दिखाई दी, उसे उस लड़की की झलक दिखाई दी जब वह स्टेशन से निकल रही थी. ओके, जब वे सड़क पर आ गए तो वेलू ने देखा कि वाहन आ जा रहे थे और किसी के लिए भी नहीं रुकते थे. उसके चारों ओर धुआं और धूल उड़ रही थी, जिससे उसे चक्कर आने लगा. उन्हें सड़क पार करने के लिए अवसर ढूंढने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा. वेलू झिझक रहा था और लड़की ने अंत में उसे दूसरी तरफ खींच लिया. तुम वहाँ क्या कर रहे थे? गाय चरा रहे थे क्या? अगर तुम इस सड़क के बीच खड़े होते हो तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. ओके, यानी उस लड़की ने कहा कि इतनी भीड़ है, अगर तुम इसके बीच में खड़े होगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी. ओके, यानी वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up the pictures. Bananas, cars, tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. Okay, what it meant? यानी इन दिस स्टेंजा ऑथर सेज दैट वेलू का दिल अब भी बुरी तरह से धड़क रहा था. उसने मुड़कर सेंट्रल स्टेशन और तेजी से गुजरने वाले यातायात को देखा. ओके, यातायात को देखा. वे इसमें से निकलकर कैसे आए? वे सड़क के किनारे बड़े बड़े साइन बोर्डों के नीचे से चलते गए. वेलू ने तस्वीरों की तरफ देखा. बनियान, कार के टायर, पेन, एक महिला जो एक बक्से को पकड़े हुए थी. सारी लिखावट अंग्रेजी में थी, इसलिए वह यह नहीं जान पाया कि इसका क्या अर्थ था. लड़की एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ी और चलती गई. वेलू रुका और रेलिंग के ऊपर से झांका. उसके नीचे वाली सड़क शहर में जा रही थी. थोड़ी दूरी पर वह बड़ी इमारतें और मीनारें और कई सड़कें देख सकता था. ओके, See, the girl turned onto a wide bridge and walked away. Velu stopped and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. ओके, यानी लड़की एक चौड़े पुल की तरफ मुड़ी, चलती गई. वेलू रुका, रेलिंग के ऊपर से झांका. उसके नीचे वाली सड़क शहर की ओर जा रही थी. थोड़ी दूरी पर वह बड़ी इमारतें, मीनारें और कई सड़कें देख सकता था. See that big building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at a huge building. Okay. Velu squinted and read the Tamil sign, Central Jail. Why? I haven't done anything wrong. You don't have to do anything. Just don't get caught. That's all. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट उस बाहरी दीवार वाली बड़ी इमारत को देखो. यदि तुम संभल कर नहीं रहे तो वहाँ जल्दी ही सलाखें गिनते नजर आओगे. लड़की हंसी और एक बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया. वेलू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तमिल में लिखा हुआ पढ़ा, सेंट्रल जेल. क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया है. तुम्हारे पास करने को कुछ है भी नहीं. बस पकड़े मत जाना, यही बात है. ओके, बस पकड़े मत जाना, यही बात है. What does she mean? What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already
heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. Okay, what are you carrying in that bag? Things, bottles, papers. Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. It was still questions. ओके यानी लड़की के कहने का क्या अर्थ था? वेलू हैरान था। अब तक लड़की बोरे को कंधे पर लटकाए पुल से नीचे उतर रही थी। इसमें क्या था? उसने उसे स्टेशन पर इसमें प्लास्टिक के कप डालते देखा था। तुम इस झोले में क्या लिए हो? चीज़ें, बोतल, कागज़। वेलू हैरान था और वह इन चीज़ों के साथ क्या कर रही थी, किंतु उसे अधिक प्रश्न पूछने में शर्म आ रही थी। ओके, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। It was still morning, but the sun blasted down on the tar, and Velu's bare feet burned. It was not like walking on a mud road. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really fast. How far away was the food? Okay, after almost an hour of walking, they stopped in front of a big building. Shri Rajeshwari Prasanna Kalyana Mandapam. Read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said, Groom J.B. Vindhyam, Bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses trapped into it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Okay. Come on, she said. Are we going to eat here? Asked Velu, looking at the huge hall and the people inside. Okay, and in this para author says that अभी सुबह ही हुई थी. It was still morning, but the sun blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. अभी सुबह ही हुई थी, किंतु सूर्य तारकोल पर चमक रहा था. ओके, यानी सूर्य जो है वो तारकोल पर चमक रहा था और वेलू के नंगे पैर जल रहे थे. वह कीचड़ या मिट्टी की सड़क पर चलने जैसा न था. वह पसीने से भीग चुका था. उसने छाया में चलने का प्रयास किया, साथ साथ लड़की के साथ चलने का भी प्रयास किया और वास्तव में तेज चल रही थी. भोजन कितनी दूर था? ठीक है, वो लड़की बहादुर थी, काफ़ी तेज चल रही थी और वेलू नहीं चल पा रहा था. सोच रहा था भोजन कितनी दूर था. करीब 1 घंटा चलने के पश्चात वे एक बड़ी इमारत के पास रुके. श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा. फूलों से बने एक संकेत बोर्ड पर लिखा था, वर जेवी विनयगान वधू रानी. वेलू बाहर खड़ी की गई बड़ी कारों की तरफ घूर रहा था. उनमें से एक कार पर फूलों की मालाएं सजी हुई थी. गुलाब के फूल टेप द्वारा चिपके हुए थे. लड़की ने चारों तरफ देखा, जल्दी से एक को निकाला, अपने बालों में लगा लिया. आ जाओ, उसने कहा. क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? वेलू ने बड़े हॉल और अंदर लोगों की तरफ देखते हुए कहा. होप्स प्लीज टर्न ओवर. उसने कहा. होप्स said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Velu.
Okay. Here's your food. Velu was shocked. Are we going to eat their leftovers? यानी in this stanzas author says that कास्ट लड़की ने अपनी नाक के नीचे अंगूठा हिलाते हुए कहा। वह उसे हॉल के पीछे ले गई। ओके, और वहाँ कूड़े से लबालब भरा हुआ एक बड़ा कूड़ेदान था। 2 बकरियाँ उस ढेर पर खड़ी एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। उनके पैरों के आसपास मक्खियों का एक बड़ा झुंड भिनभिना रहा था। हवा में एक गंदी बदबू फैली हुई थी। लड़की ने एक कुचला हुआ केला उठाया और वेलू की तरफ बढ़ा दिया। यह तुम्हारा भोजन है। वेलू को झटका लगा। और क्या हम उनकी जूठन खाने जा रहे हैं? ओके, छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। हियर सम मोर कैच। शी थ्रू हिम ए वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विद distaste. Okay, come on hero, eat it. You think I like it? I told you I will find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You had better eat what you get until you have your own money. Okay, छी, तुम मुझे क्या सोचती हो, समझती हो कुत्ता? मैं केवल बिना छुआ भोजन करता हूँ। अरे यहाँ कुछ और भी है, पकड़ो। उसने उसकी तरफ एक बड़ा फेंका। बेलू ने उसकी तरफ घृणा से देखा। अरे हीरो, आओ और इसे खा लो। तुम सोचते हो कि मुझे यह अच्छा लगा? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ निकालूंगी। ये मत सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के पैसे हैं। जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा नहीं आ जाता, जो मिले वही खा लेना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped